So, good morning, dear students. How are you all? So, in the continuation of your biology class, last day we had finished our chapter that was this reproduction in animals and plants. Okay, in that part we had finished about both the type of reproduction, sexual as well as asexual reproduction in animals and plants. Today we are going to start our new and last chapter of your syllabus, that is our environment. Okay, so in this chapter we will discuss about our environment, their factors that are an environment consists of, ecosystem, components of an ecosystem, then dependency of the different components of an ecosystem, and different types of producers, consumers, and some natural factors that are going to harm our environment. So this is our syllabus that we have to cover in this chapter. So first of all we will start this topic, that is our environment. So first is that is environment. So first of all we have to know about what is an environment. So environment is basically it is our surrounding in which we live. It is surrounding where we live. Suppose this is the place where we are living. So this complete place, that is this complete surrounding, is our environment. Okay, and a particular area of this environment, in which an organism lives with its living and non-living components. This is called, that is an ecosystem. Okay, it is the area of an environment जिसमें क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ कैसे उस पर्टिकुलर प्लेस में रह रहा है, उसी प्लेस को हम क्या कहते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज दिस इकोसिस्टम. ओके, लाइक फॉरेस्ट. एग्जांपल ऑफ दिस इकोसिस्टम कैन बी अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैन बी एन इकोसिस्टम. लाइक अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप के लिविंग कंपोनेंट्स हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट हैं. Living components like, that is the plants and different types of animals. Okay, so these are the living components along with some microorganisms that are present in this particular area. So these are the living component. Non living component कौन है, जो उस particular living organism के लिए these are important for their survival. So we will discuss about this components. First of all, in this part we will discuss about the components of an environment or ecosystem. Okay, so this is the components of an environment. So we can classify it into living component and non-living component. It is non-living component, that is called this living component is also known as biotic component. It is called this abiotic or physical component. Biotic जिसमें क्या आएगा, आपका लिविंग कंपोनेंट आएंगे. ओके, और एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट जिसमें आपके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आएंगे. बायोटिक में कौन आएगा आपका, मेनली इट इज प्लांट्स, एनिमल्स. दीज आर द मेन कंपोनेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट इज सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Okay, plants, animals and some microorganisms. Basically these microorganisms can belong to these plants or animals, but they are also included in that living or biotic component. Okay,
प्लांट्स हो गए आपके और एनिमल्स हो गए। एबायोटिक में आपके कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसके ऊपर ये लिविंग कंपोनेंट्स डिपेंडेंट होंगे। लाइक द फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट दैट इज एसेंशियल इज एयर, देन इट इज वाटर, then it is suitable temperature, then it is soil and sunlight. These are some abiotic components on which these biotic one are dependent. ठीक है, इनके सर्वाइवल के लिए चाहे वो कोई प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है। लाइक if we are talking about this air is why it is a essential component of an environment, तो reason will be क्योंकि एयर के अंदर ही क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप्स की गैसेस, लाइक मेनली इट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन हमारे लिए क्यों जरूरी है? बिकॉज वी हैव टू ब्रीथ either animal or plant or microorganism, they breathe with the help of this oxygen, so oxygen is very essential gas for our survival. Similarly, this carbon dioxide is an important factor for the plants because they prepare their food with the help of carbon dioxide by the process of photosynthesis. So for that reason this air is essential. Many other components, they are also important, but these two components are very, very much essential for the survival of any living environment. Next is that is water. As you know, water is equally important for plants and animals for preparation of food, for our other needs. Water is very important component. Because of this water, the life is present on this our earth. That is, so this water is important. Temperature for the survival of any living organism, चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो, दिस टेम्परेचर मीन्स अ सुटेबल टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो या बहुत कम टेम्परेचर हो। दूसरे प्लेनेट्स पे क्या है, या तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई है, या तो बहुत ज़्यादा लो है, या दिन के समय बहुत ज़्यादा हाई रहता है, रात के समय बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो दैट टाइप ऑफ टेम्परेचर इज नॉट सुटेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो फॉर दैट रीजन अ सुटेबल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। देन इट इज सॉइल। हमको पता है सॉइल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके अंदर प्लांट्स ग्रो करते हैं, या हमारे जिसको लिथोस्फीयर की लेयर कहते हैं हम, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड सनलाइट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। हमारे अर्थ पे एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको सनलाइट है। बिना सनलाइट के प्लांट्स प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अपना फूड, और अगर प्लांट्स नहीं प्रिपेयर कर पाएंगे अपना फूड तो क्या होगा, हमको भी एनर्जी नहीं मिलेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस सनलाइट इज ऑल्सो important. So these two components, that is biotic as well as this abiotic components, together they will form this environment or ecosystem. This is called this biotic and this is called this abiotic component. तो इनके इंपॉर्टेंस को हमने पढ़ लिया कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मतलब किसी भी इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, सपोज इट इज द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स होंगे, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं किसी भी फॉरेस्ट में, स्मॉल श्रब से लेके लॉन्ग ट्रीज तक, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स वहाँ पे आपका एक छोटा एनिमल रैबिट भी होता है, स्क्वायरल भी हो सकती है, एक मंकी भी हो सकता है, बफेलोज भी होती हैं, देन डियर होते हैं, टाइगर होते हैं, वुल्फ होता है, मेनी नंबर्स ऑफ एनिमल्स आर देयर। ओके, सो a variety of different types of plants and animals are present in this forest. But do you think that without these abiotic factors these plants and animals can survive? The answer will be no. क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो इनके सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं बनता है, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दैट इज द लिविंग कंपोनेंट्स। सो बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट for the survival or existence of any particular ecosystem or environment. Okay students, so this is the environment and their components. तो हमको इसी में से कुछ components के बारे में, living things के बारे में हमको डिस्कस करना है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है different living things का। Okay, so now हमने देख लिया components of an ecosystem, that is components of
So far we had discussed about the different components of an ecosystem. So let us talk about different types of plants. बायोटिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर लें तो उसमें अंदर क्या है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है। ये हमको डिस्कस करना है कि इनका इंपॉर्टेंस क्यों है किसी भी इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट के अंदर। तो प्लांट्स, एज वी नो, द प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। व्हाई द प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स? बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड फॉर अदर्स। लेट्स से वी आर ह्यूमन बीइंग, हम क्या करते हैं, हम खाते हैं किसी भी फूड को, और वो फूड क्या होता है, दैट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। लाइक इफ यू आर ईटिंग व्हीट, दैट इज द फ्लोर ऑफ व्हीट, देन इट इज अ प्लांट प्रोडक्ट। इफ यू आर ईटिंग राइस, राइस आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट। Grains, different types of grains that we are eating, it is all are, these are plant products. Different types fruits, vegetables, all these are plant products, ठीक है। और वो प्लांट प्रोडक्ट्स कहाँ से आए हैं, किसी न किसी प्लांट से। इसीलिए प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। क्यों? बिकॉज द प्लांट्स प्रोड्यूसेस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। It is autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition means the mode of nutrition in which the plants prepare their own food by themselves by utilizing the different natural resources like water and sunlight from the nature. इसीलिए हमको प्लांट्स को कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, और उसकी वजह से वो अपना फूड बनाते हैं और वो फूड फिर कंज्यूम किया जाता है बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स। एनिमल्स में क्या है, दे आर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दे आर हैविंग दिस हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। These animals, they are heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means we are not able to synthesize our food by ourselves. We can only cook our food. जो भी फूड अवेलेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, हम कुक करके हम उसको खा लेते हैं, लेकिन अपना फूड हम खुद से सिंथेसाइज नहीं करते हैं। इसी रीजन की वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो हाउ दे गेट देयर फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज प्लांट्स फॉर देयर फूड पर्पज। एनिमल्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड पर्पज, एंड सिंस the animals are called as consumers. These are called as consumers. Got it? Why the animals are consumers? Because they do not synthesize their own food. They are directly or indirectly dependent on the plants or any other animals for their food purpose. Because of this reason they are called as consumers. They are called consumers. ठीक है। अब कंज्यूमर्स की हम बात कर ले, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो गए, एनिमल्स क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। अब कंज्यूमर्स भी कई तरह के होंगे। जैसे हमने क्या किया था, एक एग्जांपल लिया था किसका, एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम का। लेट्स टॉक अबाउट दैट। इन दैट केस द प्लांट्स विल बी इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, दीज आर प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। अगर कोई प्लांट है तो क्या हो गया आपका, प्रोड्यूसर हो गया, प्लांट हो गया आपका प्रोड्यूसर, ठीक है। अब क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो क्या होंगे, इन्हीं प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। लेट्स से सम, अगर हम किसी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो इसमें क्या होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे जो प्लांट ईटर्स होंगे, लाइक इट इज सपोज इट इज डियर, ठीक है। डियर ने क्या किया, इस प्लांट को खाया, ठीक है। तो डियर ने क्या किया, यहां पे थोड़ा सा ये हो गया, दीज आर प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। ये प्रोड्यूसर की कैटेगरी हो गई, इसी में से हम कंज्यूमर्स को अलग करेंगे, ठीक है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स एंड नाउ द कंज्यूमर्स। तो लेट्स से इफ इट इज अ डियर एंड डियर इज गोइंग टू ईट प्लांट, क्योंकि हमको पता है डियर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, इट इज हर्बीवोरस,
ठीक है, ये हर्बीवोरस है, मतलब वो सिर्फ प्लांट्स को ही कंज्यूम कर सकता है, प्लांट पार्ट, लीफ खा सकता है, फ्रूट्स खा सकते हैं, एंड दे आर प्लांट ईटर्स। ठीक है, तो प्लांट ईटर लाइक डियर, इट इज ओनली गोइंग टू कंज्यूम, दीज आर हर्बीवोर। ये क्या है, ये एक हर्बीवोर है, हर्बीवोर। ठीक है, और यही हर्बीवोर क्या है, एक प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। लेट्स से इट इज अ डियर, डियर इज गोइंग टू कंज्यूम द प्लांट एंड इज प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया आपका। मींस द एनिमल्स दोज हु आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड पर्पज और दे ओनली ईट द प्लांट्स फॉर देयर फूड पर्पज आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स, दैट इज प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब एनिमल्स आ गए यहां से, यहां प्लांट खत्म हो गया, अब ये प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, तो उनको हम क्या कह दिए, हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो डियर को खाएंगे। ठीक है, लेट्स से इट विल बी वुल्फ। ठीक है, एक वुल्फ है जो इस डियर को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो डियर क्या हो गया, डियर को अब मतलब ये प्लांट नहीं खाएगा, डायरेक्ट ये प्लांट ईटर नहीं है, इट इज गोइंग टू कंज्यूम एनी एनिमल फॉर इट्स फूड, सो इट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इस वुल्फ को ही खाने वाला मान लो एक टाइगर है। ठीक है, एक टाइगर है, टाइगर विल बी दिस टर्शरी कंज्यूमर, टाइगर इज अ टर्शरी कंज्यूमर। सो अब यहां पे क्या हुआ, टाइगर को खाने वाला कोई अब नहीं है, टाइगर खुद से इट विल डाई। सो दिस इज द सेकेंडरी कंज्यूमर, इज टर्शरी कंज्यूमर। मे बी कोई वुल्फ हो, उसको भी ना कोई खा पाए। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इट विल बी सेकेंडरी, और जिसको कोई ना खा पाए या जिसको कोई खाने वाला ना हो, इट इज कॉल्ड दिस टॉप कंज्यूमर। ये क्या हो गया आपका, इस इकोसिस्टम का ये टॉप कंज्यूमर हो गया, मतलब अब इसको खाने वाला कोई नहीं है। ये जब मरेगा तो क्या होगा, इट विल बी डिकम्पोज्ड बाय द डिकम्पोजर्स। ओके, या आफ्टर डेथ इट कैन बी यूज्ड बाय scavengers, but scavengers are not the part of this ecosystem, they are part of this ecosystem, means that is not the part of this consumers. ओके, उसकी एक अलग कैटेगरी है, वो स्कैवेंजर्स कहलाते हैं। तो ये हो गया आपका एक प्रोड्यूसर्स, देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ, अब एक चीज क्या हुआ, यहां पे एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड हो गया। प्लांट्स को कहां से एनर्जी मिला, प्रोड्यूसर्स को, फ्रॉम दिस सनलाइट, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट से प्लांट्स ने क्या किया, एनर्जी लिया, यहां से एनर्जी गया डियर के पास, डियर की एनर्जी गई वुल्फ के पास, और वुल्फ की एनर्जी गई टाइगर के पास। ठीक है, मीन्स एक दूसरे को खाते चले गए, और इस तरह से इन्होंने एक चेन बना लिया। ठीक है, दे फॉर्म अ पर्टिकुलर चेन में क्या हो रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। सनलाइट की एनर्जी दैट इज ट्रांसफर टू द प्लांट, देन इट इज ट्रांसफर टू द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड सो ऑन। So there is a distribution of food in the form of a systematic chain, and this chain is called, very important term, it is called this food chain. It is called food chain. ठीक है, तो what is food chain? It is the distribution of the food in the successive trophic level. It is the distribution of the food in the successive trophic level is called food chain. तो यहाँ पे क्या हुआ, या another term it can be defined, who eats to whom and can be eaten by other animals. This is called this food chain. मतलब कि कौन किसको खा रहा है या कौन किसके द्वारा खाया जाएगा, एक जो चेन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एक फूड चेन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक चेन बन गया कि प्लांट्स को किसने खाया, डियर को खाया, डियर को किसने खाया, वुल्फ ने खाया, वुल्फ को किसने खा के खत्म कर दिया, इट इज द टाइगर। सो इट इज फॉर्मिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेन, और दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ चेन, सो इट इज कॉल्ड दिस फूड चेन। इसको हमने क्या कहा, फूड चेन कह लिया। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टर्म था आपके इस चैप्टर का, दिस इज व्हाट इज फूड चेन। सो इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड। सो दिस इज द टॉपिक दैट इज द फूड
chain. So we discussed that is what is food chain and food web. So what is this food chain? We discussed कि suppose there is a sunlight, it will be transferred to the plant, it will be transferred to the primary consumer, like suppose let's say it is the grasshopper. Grasshopper will be eaten by a lizard. Lizard will be eaten by, let's say it is snake, and snake will be eaten by eagle. Okay, so this is an example of another food chain. Food chain में अभी हमने डिस्कस किया था क्या कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, मतलब सन की एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हुई प्लांट्स में, ग्रासहॉपर में, लिजर्ड में और स्नेक में और ईगल में. तो ये एक बन गया एक फूड चेन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड इन द फॉर्म ऑफ चेन इज कॉल्ड दिस फूड चेन. ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम प्लांट्स, हम बात करते हैं किसी एक फूड चेन की, प्लांट्स को ग्रासहॉपर के अलावा एक मोथ खा सकता है. मोथ कैन बी ईटेड बाय दिस प्रेडेटरी मोथ. Okay, then it will be eaten by a lizard. Lizard will be eaten by snake, and then finally it will be eaten by eagle. Plant can be eaten by, let's say it is, let's say grasshopper. Grasshopper. Then this grasshopper will be eaten by lizard. Lizard will be eaten by frog. Frog will be again eaten by then, okay, this, then this, and then eagle, then eagle. तो what we can find here कि एक ही जगह पे क्या हो सकता है कि एक साथ कई सारे फूड चेन बन सकते हैं. ठीक है, एक ही जगह पे जब कई सारे फूड चेन का फॉर्मेशन एक इंटरकनेक्टिंग फूड चेन बन जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस फूड वेब. एक फूड चेन यहाँ बन गया, एक फूड चेन यहाँ बन गया, एक फूड चेन ये इधर बन गया, तो एक ही जगह पे एक से ज़्यादा फूड चेन का फॉर्मेशन हो गया. ठीक है, एंड दिस इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स आर कॉल्ड एज फूड वेब. ओके, इंटरकनेक्टिंग फूड चेन्स आर कॉल्ड एज फूड वेब. गॉट इट? तो फूड चेन और फूड वेब एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस्ड ओवर हियर. उसके बाद एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या कि जो भी एनर्जी सन से आती है तो क्या वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाती है सबके पूरे सक्सेसिव लेवल में. तो इसके लिए एक लॉ बनाया गया, कहा गया कि नो, द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल ऑफ दिस फूड चेन, it is only 10% of the energy that is transferred from one level to another level. एक लेवल से जब दूसरे लेवल पे आएगी तो एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी, ओनली 10%. और इसी को कहते हैं 10% लॉ. वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ योर चैप्टर. व्हाट इज 10% लॉ? कि एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर सक्सेसिव लेवल, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड to the next level. Rest of the energy is the loss in the form of heat. Okay, so this law of distribution of the energy from one level to another level, it is called this 10% law. Let's say कि अगर 1000 जूल की एनर्जी है सन के पास, it is only consideration, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ इसका 10%, मतलब कितना आएगा 100. तो ग्रासहॉपर के पास कितना आएगा, फिर इसका 10%, it is 10%. यहाँ पे भी कितना 10%, 10% मतलब हो गया 10. ये लिजर्ड के पास आएगा कितना, इट इज़ 1, अगेन इट इज़ 10% ऑफ 100. फिर यहाँ पे भी कितना आएगा, 1 का 10% आएगा, इट इज़ 0.1. ठीक है, यहाँ पे भी इसका कितना होगा 10%. मतलब कि क्या हो रहा है, हर एक सक्सेसिव लेवल पे जो एनर्जी का ट्रांसफरेंस हो रहा है वो कितना हो रहा है, ओनली 10% इज एनर्जी transferred from one level to another level. This is called this 10% law of distribution of energy. तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी, that is in the sunlight.
मतलब कि जो होगा, और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इन द डिफरेंट कंज्यूमर्स देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी देयर। ओके, तो प्रोड्यूसर के पास ज़्यादा एनर्जी है इन कंपेरिजन टू कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सॉरी उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी इन कंपेरिजन टू टर्सरी कंज्यूमर और क्वाटरनरी कंज्यूमर। ओके, तो दिस इज द लॉ ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी। उसके बाद एक चीज़ और, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी हो रहा है, यहाँ पे हम एक एवरी लेवल इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, इट इज कॉल्ड दिस ट्रॉपिक लेवल। एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इट इज ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मीन्स यही लेवल, मतलब कि एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर तक या एक कंज्यूमर से दूसरे कंज्यूमर तक जो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स है या एनिमल्स है या प्रोड्यूसर्स है, उनको हम क्या कह रहे हैं, ट्रॉपिक लेवल। और इसमें जो प्लांट होते हैं इसको हम रखते हैं ट्रॉपिक लेवल 1 में। द प्लांट्स आर ऑलवेज केप्ट ऑन दिस ट्रॉपिक लेवल 1। देन ट्रॉपिक लेवल 2 जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे T3 एंड T4। ठीक है, तो ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 एंड 4। ट्रॉपिक लेवल मतलब क्या है, वही लेवल जहां पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड दिस ट्रॉपिक लेवल। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने पॉसिबल मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल्स हो सकते हैं। तो जनरली जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो 3 या मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल तक ही बनता है। उसके लिए रीज़न क्या है, यही रिडक्शन इन द एनर्जी, कि जब 10% ही एनर्जी पहुंच रही है, 90% एनर्जी वहाँ से लॉस हो जा रही है, तो नीचे आते तक इतनी कम एनर्जी मिलती है कि वो उन ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए सुटेबल या एनफ नहीं होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट द फूड चेन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 ट्रॉपिक अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल। ओके, बिकॉज ऑफ दिस लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज अकॉर्डिंग टू 10% लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिफरेंट टॉपिक्स दैट वाज रिलेटेड विद the environment, its components, distribution of the energy, food chain, food web, 10% law and different topic label हमने आज डिस्कस कर लिया। In the next topic we will discuss some environmental issue like this ozone layer depletion, biological magnification. Okay, but as we know that our syllabus is going to complete, but your part it is started that you have to complete your syllabus, you have to revise it properly. Okay students, so for that reason you have to work very hard. So I hope that you will do that and you will perform better in your exam. Thank you students, thank you.